Okay, now good morning, everyone. Uh, Yesterday means not yesterday. In Good a morning, previous ma'am. Good morning, ma'am. good morning, good morning. In a previous class, we have completed this topic, advancing monsoon. Advancing monsoon, as you have understood clearly, as the name indicates, advancing. Advancing means the coming of the rainy season. The coming of the rainy season where in India. So in this, we have understood about the southeast trade winds that originated over the warm tropical areas of the Southern Ocean, and when they cross the equator and blow in the southwest direction, entering in the Indian Peninsula. इक्वेटर से इक्वेटर इंडिया के नीचे है, तो वहां से वो ब्लो करके और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इंडिया पेनिनसुलर में एंटर करती हैं. And the average velocity means the speed is about 30 kilometer per hour, and they are very strong winds. The total change of weather occurs as soon as these winds enter our Indian peninsula, and then due to that, Western Ghats also receive heavy rainfall, and the heavy rainfall is more than 250 centimeters there in Western Ghats. And the Monsurium is the southern range of Khasi Hills, which receives the highest average rainfall in the world. So this all we have understood in our previous class. Another thing we have understood about the tendency of the monsoon that have breaks. Now that have breaks, as the word indicates, breaks. That means continuation is not there. There is hindrance in the uh, means continuation of the monsoon. Monsoon rains take place only for a few days at a time. थोड़े समय के लिए, इट मीन्स 4-5 दिन कंटिन्यूएशन में होती है, या 3-4 दिन कंटिन्यूएशन में होती है, फिर एकदम से ब्रेक आ जाता है. तो इसे बोलते हैं दैट दे हैव द टेंडेंसी. उनकी ये इस टाइप से होता है इनका प्रोसेस, के वो बीच में ब्रेक कंटिन्यूएशन में नहीं आएगा. अगर कंटिन्यूएशन में ये चीज होती है मॉनसून रेन्स की, मीन्स वेलोसिटी स्पीड में कंटिन्यू रहती है बारिश, तो क्या हो जाएगा? There will be the condition of heavy rains, and which will bring the devastating floods, causing damage to life and property in the plains. और जब अगर कंटिन्यूएशन में ये मॉनसून ब्रेक्स नहीं होंगे और कंटिन्यूएशन में रेनफॉल होगा, तो ये एक तरीके से जब हैवी रेनफॉल होगा, तो दिस विल बी वेरी हार्मफुल impact on life and property of the people, and it will take the form of floods. Devastating floods means बहुत नुकसान देने वाले जो ये फ्लड का आ जाएगा. Then further we have seen about the, this is the figure showing retreating monsoon. Retreating monsoon means going back of monsoon. Now, in this advancing monsoon only, we have further seen that they cause heavy rain, which is responsible for floods in the area, and then it may be responsible for drought also in the other. एक जगह पर आप देखेंगे कि फ्लड है, तो दूसरी जगह पर एकदम से सूखा पड़ जाता है. नो रेनफॉल इज देयर, एंड इट इज ऑफन irregular in arrival and its retreat. मीन्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाउंडेशन नहीं है. ये इतना है कि ये पीरियड ड्यूरेशन ये है कि यहाँ पर हम लोग अर्ली जून से मॉनसून, एडवांसिंग मॉनसून की पोजीशन रहती है, बट पर्टिकुलरली ये चीज़ नहीं है कि ये इस पर्टिकुलर डेट पे ही अपेयर होगा. तो दे आर इरेगुलर अराइवल एंड रिट्रीट. इस समय पे अराइव होगा, इस समय पे जाएगा, तो ये पर्टिकुलर नहीं है. एक तरीके से हम देखते हैं कि जून की से वो अंदर ट्रेड विंड्स आने लगती हैं और मॉनसून स्टार्ट हो जाता है, बट देन ऑल्सो इट इज इरेगुलर इन अराइवल एंड रिट्रीट. Now, today we are going to start with this topic, retreating or post monsoon, the transition season. Now, during October and November, with the apparent movement of the sun towards the south, अब south क्या है, sun के बिल्कुल सामने है. The monsoon trough, जो monsoon trough, the monsoon area बना है, और the low pressure trough over the northern plains become weaker. अब जो लो प्रेशर लो प्रेशर आप बोल सकते हैं चैनल टाइप, जो मॉनसून चैनल जो बना हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ, वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है.
and this is gradually replaced by the high pressure system. और जब लो प्रेशर वीक हो जाता है, तब एकदम से उसकी प्लेस कौन ले लेता है? हाई प्रेशर विंड्स आकर के ले लेती हैं, एंड द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली। और जो साउथ वेस्ट से मानसून विंड्स आई थी, वो धीरे धीरे वीक हो जाती हैं और एक तरीके से ग्रेजुअली स्लोली स्लोली withdraw of the monsoon season starts by the beginning of October. अक्टूबर के बिगनिंग में the monsoon withdraws from the northern plains. अब स्टार्टिंग हो गई है मॉनसून विड्रॉल की, रिट्रीटिंग बैक ऑफ द मॉनसून की स्टार्टिंग हो गई है। अब पहले कहाँ से स्टार्ट कहाँ हुआ था? वेस्ट साइड से, साउथ वेस्ट की तरफ से स्टार्ट हुआ था। अब जब रिट्रीट हो रहा है तो वापस से ये कहाँ से हो रहा है? अक्टूबर के बिगनिंग में, एंड विड्रॉल फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। ऊपर जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, वहां से ये धीरे धीरे मॉनसून सीजन खत्म होना स्टार्ट होता है। The month of October to November form a period of transition from hot rainy season to dry winter condition. अब एक तरीके से ये हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन सीजन होता है। ट्रांजिशन सीजन मीन्स अक्टूबर से नवंबर तक ये वो पीरियड होता है जब हम एकदम हॉट रेनी सीजन होता है, जब एकदम गर्मी पड़ने लगती है और उसके बाद एकदम से बारिश का सीजन शुरू हो जाता है। और वो और ड्राई विंटर कंडीशन, इनके बीच का जो कंडीशन, जब विंटर का बिगिनिंग हो रहा है रेनी सीजन और हॉट बिल्कुल जो सीजन है वो खत्म होने पे है, तो ये कंडीशन आपको ट्रांजिशन फॉर्म क्रिएट करती है, एक तरीके से चेंज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। The retreat of the monsoon is marked by the clear skies and rise in temperature. अब clear skies बताया, जैसे कि अब कोई क्लाउड्स में कोई मॉइस्चर नहीं रह गया है, स्काई एकदम क्लियर है, नो मोर winds are there to bring the moisture laden winds are not there, and thus the rise in the temperature is also there, while day temperature are high एंड नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट। अब दिन में धीरे धीरे क्या गर्मी होने लगती है, और जो रात में है अब कूल एंड प्लेजेंट होने लगता है, थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, अभी भी लैंड में मॉइस्चर है, हल्का हल्का, ओइंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। द वेदर बिकम्स रादर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे। अब हाई टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी भी है लैंड में, तो वेदर थोड़ा सा क्या होता है, एक तरीके से अजीब सा वेदर हम फील करने लगते हैं दिन के समय। मीन्स ना तो हमें गर्मी हम बोल सकते हैं, ना हमें सर्दी लग रही है, ना गर्मी लग रही है, अजीब सी हमें वो वेदर फीलिंग होती है। दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट, और इस फीलिंग को हम अक्टूबर हीट के नाम से कहते हैं, जब टेम्परेचर तो हाई है बट ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द weather, and that is why it becomes a means a particular type of weather situation arises during this time, and that is called as October heat। ना तो हम उसको सर्दी के लिए बोल सकते हैं, ना हम ठंड लग रही है ऐसा बोल सकते हैं। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के जो सेकेंड हाफ में है, द मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन द नॉर्दर्न इंडिया। और जो सेकेंड हाफ अक्टूबर का है, उसमें धीरे धीरे मर्क्यूरी फॉल होने लगता है, दैट मीन्स धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है और सर्दियों की स्टार्टिंग हो जाती है। The low pressure conditions over the northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early November। अब लो प्रेशर कंडीशंस जो बनती हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ, अब वो कहाँ ट्रांसफर हो रही है? बे ऑफ बंगाल में। अब कहाँ पर बे ऑफ बंगाल में? नवंबर के मंथ में। So this shift is associated with the occurrence of cyclonic depressions which originate over the Andaman Sea। और ये जो शिफ्ट हुआ है लो प्रेशर का, ट्रांसफर हुआ है बे ऑफ बंगाल में नवंबर मंथ में, तो ये जो अकरेंस है वो साइक्लोनिक डिप्रेशंस ओरिजिनेट करने में हेल्पफुल रहता है। And this cyclonic depression originate over where? Over Andaman Sea, and these cyclones generally cross the eastern coast of India। और ये cyclones कहाँ पर originate होते हैं? ईस्टर्न कोस्ट इंडिया के, and cause
हैवी एंड वाइडस्प्रेड रेन। अब ईस्टर्न कोस्ट एरियाज में ये हैवी रेन्स लाने का काम करते हैं, ये जो साइक्लोन्स उठते हैं यहाँ अंडमान सी से। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव। और जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिक्स के पास जो ओरिजिनेट होते हैं ये साइक्लोन्स, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, हार्मफुल होते हैं। द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टास ऑफ गोदावरी, Krishna and the Kaveri are frequently struck by the cyclones which cause great damage to life and property. अब जो डेल्टा एरिया है, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इनके पास जो डेल्टा एरिया है वहाँ पर मोस्टली ये साइक्लोन जो अंडमान सी से निकलते हैं वो स्ट्रक करते हैं, और जो कि रिस्पॉन्सिबल है लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। समटाइम्स these cyclones arrive at the coast of उड़ीसा। कभी कभी ये उड़ीसा के कोस्ट पे भी अराइव होते हैं, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, इन जगहों पे भी ये साइक्लोन्स की डिवास्टेटिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स। अब जो रेनफॉल है हैवी मींस बिग अमाउंट में जो रेनफॉल है कोरोमंडल कोस्ट की, ये क्या ड्राइव फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन। साइक्लोन और जो डिप्रेशंस बनते हैं उसी का रिजल्ट है कि कोरोमंडल कोस्ट पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है। कोरोमंडल कोस्ट का एक तरफ वेस्ट की तरफ यहाँ पर डाउन साउथ में वेस्टर्न घाट्स है, इधर इस साइड हम लोग देखते हैं कि कोरोमंडल कोस्ट है साउथ की तरफ, इस साइड आउटर साइड में बे ऑफ बंगाल की तरफ बिल्कुल इंडिया से लगा हुआ कोरोमंडल कोस्ट, तो यहाँ पर बल्क ऑफ हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। Parts of western coast and northeast India receive over about 400 centimeters of rainfall annually. Now, which parts get 400 centimeter of rainfall means whole year. If we see that within the whole year, the western coast and the northeast India, western coast, that is this area about sidewise, and the northeastern of India, these both parts receive the means 400 centimeter up to 400 centimeter of rainfall annually. Then, however, it is less than 60 centimeter in West Rajasthan and adjoining parts of Gujarat. But it is less than, that means यहाँ पर गुजरात और राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते ये बहुत ही रेनफॉल का अमाउंट बहुत ही कम हो जाता है। Haryana and Punjab, then rainfall is equally low in the interior of Deccan Plateau, और डेक्कन प्लेट्यू के इंटीरियर में बिल्कुल ही मींस रेनफॉल इक्वली लो हो जाता है, जो जैसे वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्दर्न ईस्टर्न में जो इसका अमाउंट ऑफ रेनफॉल था उससे बिल्कुल ही लेस हो जाता है। एंड ईस्ट ऑफ सियादरीज, व्हाई डू दीज रीजन्स रिसीव लो रेनफॉल। अब इन क्या रीजन है कि ये रीजन्स को लो रेनफॉल मिलता है। At a third area of low precipitation is around Leh in Jammu and Kashmir. अब जम्मू एंड कश्मीर में लो प्रेसिपिटेशन एरिया है। जम्मू एंड कश्मीर में कौन से एरिया में? लेह में। एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल, और जो बाकी का एरिया है उसमें मॉडरेट रेनफॉल एंड नाइदर टू much nor too less. So moderate rainfall is there in other part of the country. Then snowfall is restricted to the Himalayan region, और हिमालयन रीजन में ही स्नोफॉल रिस्ट्रिक्टेड है, बाकी इधर इस साइड तक नहीं आ पाती है। इधर स्टार्टिंग में हिमालयन रीजन्स में तो स्नोफॉल होती है, और उसके बाद धीरे धीरे हम जैसे जैसे नीचे आते हैं यहाँ पर अपने गुजरात राजस्थान इधर इस साइड एरिया में, तो यहाँ पर हम देखने को मिलते कि रेनफॉल होती है। Then, owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. Variability is high in the regions of low rainfall. अब owing to the nature of monsoon, जैसा कि monsoon का है कि annual rainfall is highly variable from year to year, means
कभी कम कभी ज़्यादा, कुछ आप नहीं लगा सकते कि पिछले साल जितना रेनफॉल हुआ था उतना ही अभी होगा। इट इज़ नॉट पर्टिकुलर अबाउट दैट। वेरिएबिलिटी इज़ हाई इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल सच एज पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अब हम ये रेनफॉल जो देखते हैं ये कम कहाँ पर देखने को मिलती है? राजस्थान, गुजरात एंड लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स मीन्स यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है, तो जैसे ही मॉनसून ट्रेड विंड्स वेस्टर्न घाट्स को एंटर करती हैं, तो यहाँ पर तो वेस्टर्न घाट्स के एंट्रेंस में तो हम खूब सारे रेनफॉल देखेंगे, बट ड्यू टू द बैरियर्स ऑफ द घाट्स एंड ऑल, वो आगे की तरफ पास नहीं हो सकती है, तो दैट इज कॉल्ड द लीवर्ड साइड, बैक साइड। तो वहाँ पर ये एज अ बैरियर हो जाता है, तो इसीलिए वहाँ पर इतना रेनफॉल नहीं देखने को मिलता है। As such, while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, areas of low rainfall are drought prone. अब जहाँ पर हाई रेनफॉल है एरियाज, वो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर वो कौन सी एरियाज होंगे अफेक्टेड बाय द फ्लड, वहाँ पर फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो लो रेनफॉल एरिया होंगे, जैसा कि हमने देखा राजस्थान, गुजरात वगैरह में, तो वहाँ पर अगर बिल्कुल ही रेनफॉल नहीं के बराबर होगी, then may be possible the condition of drought, सूखा पड़ जाने के चांसेस हैं when there is no rainfall. Now monsoon as a unifying bond. मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड मीन्स जब रेनफॉल होती है तो सबके लिए एक तरीके से सब रेनफॉल देखते बड़े खुश होते हैं कि हाँ, सबके लिए एक खुशी का कारण होता है कि हमारे यहाँ बारिश हुई है। तो यू हैव ऑलरेडी नो द वे ऑफ हिमालयस प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड winds फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। एज वी नो दैट हिमालयस आर द बैरियर्स। बैरियर्स हैं कैसे? जब एक्सट्रीमली जो सेंट्रल एशिया है ऊपर हिमालय के पहले वाला रीजन्स, जो अगर वर्ल्ड में आप देखें तो जो सेंट्रल एशिया है वहाँ से बहुत एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स, बहुत ही कोल्ड रीजन है वो एरिया। और वहाँ से जब एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स एंटर इस साइड आती हैं हमारे इंडिया की तरफ, तो ये हिमालयस एक तरीके से बैरियर का काम करता है और उनको डायरेक्ट एंटर नहीं होने देता है इंडिया में। That is why it is said as Himalayas protect the subcontinent from the extremely cold winds from Central Asia, जो Central Asia से आती हैं। तो हिमालयस एक तरीके से बैरियर के रूप में खड़ा हो जाता है, तो वो जो कोल्ड विंड्स सेंट्रल एशिया से आ रही है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं इंडिया सब कॉन्टिनेंट में। और वो पहले ही वहाँ ट्रेड विंड्स से पहले ही ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस रहती है, एंड दिस enables northern India to have uniformly higher temperature as compared to other areas on the same latitudes। और इसीलिए ये नॉर्दर्न इंडिया में जो हाई टेम्परेचर रहता है दूसरी लैटिट्यूड से कंपैरिजन में देखा जाए, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहेगा एज कंपेयर टू द latitudes which are present in the same means area। Similarly, the peninsular plateau under the influence of the sea from the three sides। अब peninsular plateau जो है वो influence कहाँ है उसका? तीनों साइड से सी का इन्फ्लुएंस है। हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर, वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर है बिकॉज वहाँ लैंड और सी ब्रीज का इक्वल कॉम्बिनेशन रहता है कि सी जो है वो ज़्यादा मीन्स कूल होने में भी ज़्यादा समय लेती है, पानी ठंडा होने में भी ज़्यादा समय लेता है। तो नेचुरली वो ना तो ज़्यादा ठंडी रहती है ना ज़्यादा गर्म रहती है, मॉडरेट टेम्परेचर वहाँ पर देखने को मिलता है। डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस देयर आर ग्रेट वेरिएशंस इन द टेम्परेचर कंडीशंस। और फिर भी टेम्परेचर कंडीशंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। Nevertheless, the unifying influence of monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible। That means जो ओवरऑल अगर हम मॉनसून सीजन को देखेंगे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर जगह थोड़ा बहुत हमें बारिश देखने को मिलती है। द सीजनल अल्ट्रेशन ऑफ विंड सिस्टम एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस प्रोवाइड अ रिदमिक साइकिल ऑफ द सीजन। और जो ये सीजनल अल्ट्रेशन है
सीजनल ऑल्ट्रेशन जब भी हमने देखा कि समर समर के बाद रेनी रेनी के बाद विंटर, ये जो साइकिल चलती है सीजन की, मीन्स थ्री थ्री 3 to 4 मंथ्स में सिमिलर जो सीजन रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि द सीजनल ऑल्ट्रेशन ऑफ विंड सिस्टम एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस, और जो वेदर कंडीशंस उससे रिलेटेड है, वो एक तरीके से रिदमिक साइकिल ऑफ द सीजन क्रिएट करता है। मीन्स 4 मंथ्स कंटिन्यूएशन में आपके सर्दी के रहेंगे, 4 मंथ्स आपके कंटिन्यूएशन में बहुत गर्मी पड़ेगी, फिर 4 मंथ्स आपके नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा इंडिया में, फिर 4 मंथ्स रेनी के या मानसून सीजन्स के। तो इस तरीके से एक वेदर कंडीशन हमें रिदमिक साइकिल के रूप में देखने को मिलती है। इवन द अनसर्टनिटीज ऑफ द रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन are very much typical of the monsoon. Means monsoons are uncertainty. There is always uncertainty in the coming of the monsoon and the going of the monsoon, and even they are much typical for the monsoon season. The Indian landscape, its animal and plant life, its entire agriculture calendar, and the life of the people, including their festivities, revolve around the phenomena. और इसी मॉनसून सीजन पे डिपेंड करती है पूरा नेचुरल फिनोमिना, इंडिया का लैंडस्केप, उसकी एनिमल और प्लांट लाइफ, even the agricultural calendar, which crop to be sown in which season, which crop to be harvested in which season, and the life of the people, all including their festival, the which festival to be celebrated in which season. It all revolve around this monsoon phenomena. Year after year, people of India, from north to south and from east to west, eagerly await the arrival of monsoon. और इसीलिए हर साल इंडिया में नॉर्थ टू साउथ, मीन्स फ्रॉम द we can say whole of India, each and every person is very eager to the wait eagerly, they all wait eagerly for the arrival of the monsoon, रेनी सीजन के आने का इंतजार बहुत करते हैं, because all their work activities, festivities, agricultural production, animal and plant life all depends on the coming of the monsoon, on the rainy season. These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion. और ये जो monsoon winds जो आती हैं, ये एक तरीके से पूरी कंट्री को एक मीन्स ज्वाइन कर देती हैं, बाइंड कर देती हैं। कैसे कि सबको वो वाटर प्रोवाइड करती हैं ताकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कैन टेक प्लेस means accordingly, and the river valleys which carry this water also unite as the single river valley unit. और ये river valleys जब बारिश होएगी तो और नेचुरली रिवर्स ओवरफ्लो होंगी, और रिवर्स ओवरफ्लो होंगी तो दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस एंड ऑल. सो इन दिस वे द मानसून helps, and we can say that monsoons are the unifying bond for the people. uh, so this comes to an end of the lesson. In our next class we are going to discuss the question and answers. I think tomorrow we have to meet in the school, and those who are studying online, we are going to discuss the question answers first, to recall of whatever we have read today, and the discussion of the question answers will be there in tomorrow's class. Till then, read the lesson, and if any doubt and all, you can ask me. Okay. Now type present once again for the attendance, and then you can leave the class. Thank you.